Hello students, welcome to my YouTube channel Geeta Study. Students, today I start a chapter of class 6 civics. Students, I explain this chapter also in Hindi. The name of chapter is Understanding Diversity. So let's we start the chapter. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, or religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and culture helps to make India so interesting and so diverse. What does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kinds of difference a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter to find some answers. इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता यानी भिन्नता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। Three children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? The chances are that your drawing is quite different from the other three, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. We not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. Is there anyone whose list matches your exactly? Probably not. But many of you may have similar answers. How many like reading the same kind of books? How many different languages are spoken by the students in your class? By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. अपनी अध्यापिका मीन्स टीचर की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं होगा। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं?
इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper. Where from? English paper? No, it's not from. Yes. Here. And screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिलते जुलते शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। You mean you know हिंदी? He asked. बिल्कुल, उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? Of course, I said as I paid for the paper. बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। Why? What did you think? क्यों? तुमने क्या सोचा? He paused. But you look so अंग्रेज। He said, you mean you can even read हिंदी? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। Of course I can, I said, this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। Subjects, he asked. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something. I began, but the lights changed and the honking behind me grew a hundredfold, and I let myself he pushed along with the rest of the traffic. सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया।
फ्रॉम ईयर, अच्छा, ओके। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर. भैया, ही सेड, आपका अखबार. अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रोल्ड बाई समवन एल्स. अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था. वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया, आपका अखबार. अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. अंग्रेज़ी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था. ऐसे लगा मानो अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है. Oh, it's just something to study, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he answered. And he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा. उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया. फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था. उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा. पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ. Where is your mother now? I asked. But then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me. She's in Meerut. With the rest was drowned out. अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा. पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा. मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है. और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया. Okay, so I over this chapter. So यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके. लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए. थैंक यू.